بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ٹیوٹر زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیوٹر زیشان آن لائن۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ اس لیکچر کا ٹاپک ہے فائل ہینڈلنگ ان سی لینگویج۔ سی لینگویج کے اندر فائل ہینڈلنگ، سی لینگویج کے اندر فائل ہینڈلنگ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس لیکچر کے اندر میں آپ کو فائل ہینڈلنگ کے متعلق تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ سی لینگویج کے اندر فائل ہینڈلنگ کیوں ضروری ہے، فائل ہینڈلنگ کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں، سی لینگویج کے اندر کون سی فائلز کی ٹائپس ہیں، ان فائلز کے اوپر کون سے آپریشن پرفارم ہوتے ہیں، کون سے موڈز کے اندر فائلز کو ہینڈل کیا جاتا ہے، اور فائل کے اوپر ڈیٹا کس طرح سے ریڈ اور رائٹ ہوتا ہے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر تفصیل کے ساتھ کور کروں گا اور آنے والے لیکچرز کے اندر ان کو پریکٹیکلی پرفارم کروں گا۔ ڈیورنگ the execution of program, all data stored in primary memory that is called RAM۔ پروگرام کی ایگزیکیوشن کے دوران تمام ڈیٹا پرائمری میموری کے اندر سٹور ہوتا ہے جو کہ ریم ہے، رینڈم ایکسیس میموری۔ We know that the primary memory is volatile۔ ہمیں معلوم ہے کہ پرائمری میموری volatile میموری ہے۔ volatile سے مراد کہ اس کو جب تک کرنٹ ملتی رہے گی اس کے اندر ڈیٹا سیو رہے گا، جیسے ہی اس کو کرنٹ ملنا بند ہوگی اس کے اندر موجود تمام ڈیٹا لاس ہو جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں پرماننٹ سٹوریج ہارڈ ڈسک ہے۔ پرائمری میموری کو ٹیمپریری میموری بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ڈیٹا عارضی طور پہ سیو ہوتا ہے۔ When the program is terminated, then all data is lost۔ جیسے ہی پروگرام ٹرمینیٹ کرے گا اس کے ساتھ ہی تمام کا تمام ڈیٹا لاس ہو جائے گا۔ بعض اوقات ان پٹ کی صورت میں بہت زیادہ ڈیٹا انٹر کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ملٹیپل آپریشن پرفارم کر کے ریزلٹس اسکرین کے اوپر ڈسپلے کروائے ہوتے ہیں، جیسا کہ اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ ہیں۔ جیسے ہی پروگرام ٹرمینیٹ کرے گا یا لائٹ آف ہو جائے گی وہ تمام کا تمام ڈیٹا لاس ہو جائے گا۔ جب بھی دوبارہ سے اس پروگرام کو اگر رن کریں گے تو سارے کا سارا ڈیٹا دوبارہ سے انٹر کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، بار بار ڈیٹا کو انٹر کرنا ہے اور ہر دفعہ ڈیٹا لاس ہو جاتا ہے۔ اس کا سولوشن کیا ہے؟ If we want to save data permanently on storage devices like hard disk, then we need files۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنا وہ ڈیٹا پرماننٹلی اسٹوریج ڈیوائسز کے اوپر سیو کریں جیسا کہ ہارڈ ڈسک ہیں تو ہمیں فائل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہارڈ ڈسک کے اوپر جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ پرماننٹلی سٹور ہوتا ہے۔ جب تک کہ یوزر خود اس کو ڈیلیٹ نہ کرے وہ آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ تو ہارڈ ڈسک کے اوپر ڈیٹا فائلز کی صورت میں سیو ہوتا ہے۔ ہم سی لینگویج کے اندر ڈیٹا کو فائلز کے تھرو ہینڈل کریں گے۔ سی لینگویج کے اندر ہمیں فائل ہینڈلنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ سی لینگویج پرووائڈ فائل ہینڈلنگ فیچر ٹو سیو ڈیٹا پرماننٹلی آن ہارڈ ڈسک ان دی فارم آف فائلز۔ سی لینگویج پروگرامر کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ اپنا تمام ڈیٹا ہارڈ ڈسک کے اوپر پرماننٹلی سیو کر لے فائلز کی صورت میں۔ ڈیٹا فائلز کی صورت میں ہارڈ ڈسک کے اوپر سیو رہے گا اور جب بھی ضرورت ہوگی ہم اس فائل کے اندر سے ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ہیں یا اس فائل کے اندر مزید ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں۔ فائل ہینڈلنگ کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز آف فائل ہینڈلنگ۔ فائل ہینڈلنگ کے ایڈوانٹیجز، فائل ہینڈلنگ کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں، ون بائی ون کر کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ A file is a container that is used for storing data permanently on drive۔ فائل ایک کنٹینر ہے جو ہارڈ ڈسک کے اوپر ڈیٹا کو پرماننٹلی سٹور کروانے کے لیے یوز ہوتی ہے۔ آپ کے کمپیوٹر کے اوپر بے شمار فائلز موجود ہوں گی جس میں سی پروگرامنگ کی فائلز بھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ دیگر فائلز بھی ہیں۔ تو یہ تمام فائلز ہارڈ ڈسک کے اوپر موجود ہیں اور یہ پرماننٹلی موجود رہیں گی جب تک کہ آپ ان کو خود سے ڈیلیٹ نہیں کرتے۔ ان فائل ڈیٹا ول بی پریزرو اف دا پروگرام ٹرمینیٹ۔ فائلز کے اندر ڈیٹا محفوظ رہتا ہے اگر پروگرام کو ٹرمینیٹ بھی کر دیں، کیونکہ ڈیٹا اب پرائمری سٹوریج کی بجائے پرماننٹ سٹوریج کے اوپر فائل کی صورت میں موجود ہے۔ تو آپ پروگرام کو کلوز بھی کر دیں تب بھی فائل کی صورت میں جو ڈیٹا ہارڈ ڈسک کے اوپر موجود ہے وہ سیو ہے۔ If you save data in files, you can access it easily in C language by using some commands۔ اگر ڈیٹا کو فائلز کی صورت میں ہارڈ ڈسک کے اوپر سیو کر لیتے ہیں تو ہم جب چاہیں اس کو ایزیلی ایکسس کر سکتے ہیں سی لینگویج کے اندر چند کمانڈز کو یوز کر کے۔ You can easily move data from one computer
to another computer without any loss. फाइल्स की सूरत में मौजूद डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर इजीली मूव भी किया जा सकता है, जिसमें किसी किस्म का कोई लॉस भी नहीं होता। ईमेल्स के थ्रू, यूएसबी ड्राइव के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू फाइल्स को कॉपी करके दूसरे सिस्टम के ऊपर पेस्ट किया जा सकता है। डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। फाइल हैंडलिंग सेव टाइम टू री एंटर डाटा। फाइल हैंडलिंग टाइम को सेव करती है जो टाइम डाटा को री एंटर करने में सर्व होना है। एक दफा डाटा को एंटर कर दिया, उसको फाइल्स की सूरत में हार्ड डिस्क के ऊपर सेव कर दिया, दोबारा से उस डाटा को एंटर करने की जरूरत नहीं है। उस डाटा को जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग से टाइम सेव हो जाता है। अब देखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह की फाइल्स हैं। टाइप्स ऑफ फाइल्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर फाइल्स की टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स। सी लैंग्वेज के अंदर दो मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 टेक्स्ट फाइल्स और नंबर 2 बाइनरी फाइल। दोनों में क्या डिफरेंस है, वन बाय वन करके इनको तफसील के साथ समझने की कोशिश करते हैं। टेक्स्ट फाइल्स सिंपल फाइल विद एक्सटेंशन .txt। टेक्स्ट फाइल सिंपल फाइल्स होती हैं जिनकी एक्सटेंशन .txt है। ये सिंपल टेक्स्ट फाइल्स हैं। नोटपैड के अंदर आप इसको सेव करते हैं। कंटेंट्स आर इन प्लेन टेक्स्ट एंड इजीली रीडेबल। इस फाइल के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर होंगे, यानी कि क्लियर फॉर्म के अंदर होंगे, आप उनको इजीली रीड कर सकते हैं। इट प्रोवाइड लीस्ट सिक्योरिटी एंड टेक बिग स्टोरेज स्पेस। टेक्स्ट फाइल के अंदर मौजूद डाटा सिक्योर नहीं है क्योंकि ये क्लियर फॉर्म के अंदर है। कोई भी इस फाइल को ओपन करके उसके अंदर से डाटा को इजीली रीड कर सकता है और ये फाइल्स स्टोरेज के लिए लार्जर स्पेस कंज्यूम करती हैं। जबकि इसके मुकाबले में बाइनरी फाइल्स हैं। बाइनरी फाइल्स आर मोस्टली .bin एक्सटेंशन। बाइनरी फाइल्स मोस्टली .bin एक्सटेंशन के साथ होती हैं। इट स्टोर्स डाटा इन जीरोस एंड वन फॉर्म। बाइनरी फाइल्स के अंदर डाटा जीरोस और वन की फॉर्म के अंदर होता है जो कि बाइनरी फॉर्म कहलाती है। इट होल्ड लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा एंड नॉट रीडेबल इजीली। बाइनरी फाइल्स के अंदर बहुत बड़ा डाटा हो सकता है जो कि इजीली रीडेबल नहीं है। जैसे ऑब्जेक्ट फाइल हैं वो भी 0 की फॉर्म के अंदर होती हैं। आप अगर उसको ओपन भी करें तो बाज़ औक़ात फाइल्स प्रॉपरली ओपन भी नहीं होती और अगर ओपन हो जाए तो उसके अंदर से डाटा क्लियर फॉर्म के अंदर नजर नहीं आ रहा होता। यूजर को नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। तो इस सेंस में ये सिक्योर है। इट प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी देन टेक्स्ट फाइल्स। ये बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल्स। और सिक्योरिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा क्लियरली नजर आ रहा होता है जबकि बाइनरी फाइल्स के अंदर डाटा क्लियरली नजर नहीं आ रहा होता। पता ही नहीं चलता कि ये 0 की फॉर्म के अंदर क्या चीज है। अब देखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर इन फाइल्स के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन फाइल्स। फाइल्स के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं। इन सी लैंग्वेज यू कैन परफॉर्म 5 ऑपरेशन ऑन फाइल्स सच एज। सी लैंग्वेज के अंदर आप फाइल्स के ऊपर मुख्तलिफ 5 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि क्रिएट अ न्यू फाइल, एक नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। वो टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, वो बाइनरी फाइल भी हो सकती है। फाइल को क्रिएट करने के बाद आप उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, पहले से मौजूद किसी फाइल को ओपन किया जाएगा। राइट डाटा टू अ फाइल, न्यू डाटा को फाइल के अंदर राइट करना है। रीड डाटा फ्रॉम अ फाइल, फाइल के अंदर से डाटा को रीड करना है। एंड क्लोज फाइल, जिस फाइल को ओपन किया उस फाइल को क्लोज भी कर देना है ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उस फाइल को ओपन किया जाए तो वो फाइल इजीली ओपन हो जाए। तो ये 5 मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर फाइल्स के ऊपर परफॉर्म होंगे। टू परफॉर्म ऑल अबव ऑपरेशंस सी प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन फंक्शन इन इट्स लाइब्रेरी। ये 5 मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो उसकी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। हम उन फंक्शंस को यूज करते हुए ये तमाम ऑपरेशंस फाइल्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे। वो टेक्स्ट फाइल के ऊपर भी हो सकते हैं और वो बाइनरी फाइल के ऊपर भी परफॉर्म हो सकते हैं। अब देखते हैं कि फाइल्स के मोड कौन से हैं। डिफरेंट मोड ऑफ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के अंदर मुख्तलिफ मोड्स हैं। सी प्रोवाइड सेवरल मोड्स ऑफ फाइल हैंडलिंग सच एज। सी लैंग्वेज के अंदर फाइल हैंडलिंग के लिए मल्टीपल मोड्स हैं जैसा कि आर या आरबी। ये मोड रीड मोड कहलाता है। फाइल को आर मोड के साथ ओपन करेंगे। सिंपल आर है तो ये टेक्स्ट फाइल है और आरबी से मुराद बाइनरी फाइल रीड मोड। उसके बाद डब्ल्यू मोड है या डब्ल्यू बी है। डब्ल्यू मोड राइट मोड, फाइल को ओपन करके उसके अंदर डाटा को राइट करने के लिए
यूज होगा। सिंपल W टेक्स्ट को राइट मोड के अंदर ओपन करने के लिए, जबकि WB बाइनरी फाइल को राइट मोड के अंदर ओपन करने के लिए। जब भी किसी फाइल को ओपन करेंगे तो साथ उसका मोड मेंशन करेंगे कि हम किस मकसद के लिए ओपन कर रहे हैं, क्या उसके अंदर से डाटा को रीड करना है या उसके अंदर डाटा को राइट करना है। बाज़ औक़ात एक फाइल को दोनों मोड्स के साथ ओपन किया जा सकता है, बैक वक्त उसके अंदर से डाटा को रीड भी किया जा सकता है और उसके साथ साथ उस फाइल के अंदर डाटा को राइट भी किया जा सकता है। उसके बाद है अपेंड मोड, एड न्यू डाटा एट द एंड। फाइल के अंदर अगर पहले डाटा है और हम उस फाइल को ओपन कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि पहले वाला डाटा उसके अंदर एज इट इज हो और जो नया डाटा उसके अंदर राइट करें वो उसके लास्ट के ऊपर ऐड हो, तो उस फाइल को अपेंड मोड के अंदर ओपन करेंगे। सिंपल ए टेक्स्ट फाइल को अपेंड मोड के अंदर ओपन करने के लिए यूज होगा, जबकि AB मोड बाइनरी फाइल को अपेंड मोड के साथ ओपन करने के लिए यूज होगा। उसके बाद है R+ या RB+। ये बोथ मोड्स हैं, रीडिंग एंड राइटिंग के लिए यूज होंगे। एक फाइल को रीड और राइट दोनों मकसद के लिए ओपन किया जाएगा। R+ का मतलब है टेक्स्ट फाइल को दोनों मोड्स के अंदर ओपन करना और RB+ का मतलब है बाइनरी फाइल को रीड और राइट दोनों मोड्स के अंदर ओपन करना। इसके अलावा चंद एक और मोड्स भी हैं। सी लैंग्वेज के अंदर फाइल्स हैंडलिंग के मुख्तलिफ मोड्स हैं, जिनको हम प्रैक्टिकली आने वाले लेक्चर्स के अंदर तफसील के साथ देखेंगे। अब देखते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर फाइल्स के अंदर से डाटा किस तरह से रीड और राइट होता है। रीड और राइट डाटा, सी लैंग्वेज के अंदर फाइल्स के अंदर से डाटा किस तरह से रीड और राइट होता है। सी प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा रीड और राइट। सी लैंग्वेज डाटा को रीड और राइट करने के मुख्तलिफ अंदाज प्रोवाइड करती है, जैसा कि करैक्टर बाय करैक्टर है। एक एक करैक्टर को फाइल के अंदर राइट करेंगे और एक एक करैक्टर को फाइल के अंदर से रीड करेंगे। करैक्टर बाय करैक्टर के अंदर टाइम ज्यादा लग जाता है, बहुत बड़ा डाटा है, तो करैक्टर बाय करैक्टर के साथ डाटा को राइट करना या रीड करना ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद है लाइन बाय लाइन। करैक्टर बाय करैक्टर की बजाय एक पूरी की पूरी लाइन को फाइल के अंदर स्टोर करवाना और एक पूरी की पूरी लाइन को फाइल के अंदर से रीड करना। लाइन बाय लाइन करैक्टर बाय करैक्टर की निस्बत स्पीडी काम करेगी। और उसके बाद है रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड। रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड लाइन बाय लाइन से भी ज्यादा स्पीडी काम करता है। इसके अंदर एक पूरे के पूरे रिकॉर्ड को फाइल के अंदर सेव करेंगे और एक पूरे के पूरे रिकॉर्ड को फाइल के अंदर से रीड करेंगे। एक रिकॉर्ड मल्टीपल डाटा सेट के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है, जैसा कि स्टूडेंट का नेम, उसकी आईडी, उसके सब्जेक्ट्स के नेम, सब्जेक्ट से मार्क्स, उसका रिजल्ट, ये इस तरीके से मल्टीपल फील्ड्स के ऊपर मुश्तमिल एक रिकॉर्ड है। मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक फाइल के अंदर रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड सूरत में सेव करवाएंगे और रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड ही उसका डाटा रीड करेंगे। करैक्टर बाय करैक्टर और लाइन बाय लाइन ये दोनों अंदाज नॉर्मली टेक्स्ट फाइल के ऊपर अप्लाई होते हैं, जबकि बाइनरी फाइल के अंदर रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड डाटा सेव होता है और रीड होता है। ये फाइल हैंडलिंग के मुख्तलिफ कंसेप्ट्स हैं, इनको आने वाले लेक्चर्स के अंदर तफसील के साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।